Assalamualaikum everyone. My name is Gulizara, here to bring you newspaper breakdown session courtesy of the KIPS CSS network. I hope that this video reaches you in good health and spirits. So for today what we are going to be discussing is the issue of Pakistan's current energy shortfall, the issues that it faces in creating a more cleaner, resilient energy mix to combat climate change, and number 3, how can it be brought about. वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान according to some estimates is the 7th most affected country by climate change, and as of right now in 2019 ये रेटिंग मज़ीद आपकी बढ़ चुकी हुई है. You now stand at the 5th most water stressed and consequently energy stressed country in the world. So it is imperative and high time for Pakistan to overview its entire energy sector, bring about critical reforms, maintain more transparency and accountability, improve access, and also make sure that the energy mix that they use for generating electricity is more environmentally sustainable. According to some estimates, 58 million people in Pakistan lack access to electricity. And with growing incomes, population burst, and also more urbanization, the demand is going to increase day by day. Pakistan is now becoming more dependent on imports of oil and coal to meet its growing energy demands. Now, these growing oil imports and coal imports are obviously going to be adding to Pakistan's environmental concerns problems. और अगर हम बात करते हैं कि इन द ब्रॉडर एशियन कॉन्टेक्स्ट जो आपकी नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ अबाउट 0.6% ऑफ ओवरऑल ग्लोबल एनर्जी कार्बन इमिशंस CO2 इमिशंस. लेकिन वी हैव ऑल्सो promised that these energy emissions or these carbon emissions are going to be reduced by a further 20% in 2030. अब बात ये है कि ये सब बातें कहना आसान है, करनी बहुत मुश्किल है. The power sector inside Pakistan is so deeply flawed, so full of corruption. और not only that, it also suffers from a vast circular debt जिसका कोई आपको जो है पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा है. Revenue generation from every electricity or power supplying company inside Pakistan has always been historically low because of corruption and mismanagement and a lot of practices that reduce transparency, ठीक है, and also इस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से आपके पास करप्शन होती है. henceforth जिस काम के लिए आपको पैसे दिए गए हैं वो काम नहीं होता है. So what are the critical challenges that Pakistan faces in both having energy accessibility, number 1, in having cleaner energy, number 2, in having a very well protected bilateral energy system, and number 4, how can Pakistan make sure and forge a progress forward. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपका जो है वो एनर्जी सेक्टर जो है वो किस हद तक ज़रूरी है. एनर्जी सेक्टर के बगैर ना आप हेल्थ केयर में प्रोसीड कर सकते हैं, ना आप एजुकेशन में प्रोसीड कर सकते हैं, एंड ना नाइदर यू कैन ओवरकम पॉवर्टी. एक वायबल एनर्जी सेक्टर जो है दैट कैन ऑल्सो हेल्प मोबिलाइज मच नीडेड इन्वेस्टमेंट्स. So the point of this, you can say this dialogue was that energy is directly or indirectly correlated to the economics of a country. And if your energy sector is weak, then your economics are weak, and when your economics are weak, your people suffer. Not only that, if energy is not available in certain parts of Pakistan, आपके पास major infrastructure setup करने में बहुत मुश्किल होती है, जैसे कि schools, जैसे कि hospitals. When you do not have accessible energy or accessible electricity to rural areas, आपके पास इन चीज़ों का setup भी बहुत difficult हो जाता है. So पाकिस्तान के पास जो है वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है टू मेंटेन अ मोर एक्सेसिबल, environmentally viable
एनर्जी सिस्टम. सो नंबर 1 इज कि आपके पास जो गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी है दैट शुड बी इंक्रीज. नंबर 2, growing energy demands and moving to a cleaner energy mix is a must. Number 3, increasing affordability and access. Number 4, addressing environmental degradation and climate change. And number 5, increasing power sector viability. So let's just break them down point by point. So आपका जो पहला point था वो ये था कि आपकी जो growing energy demands हैं उनको जो है वो आपने कैसे meet करना है and moving forward to a cleaner energy mix. अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की ओवरऑल एमिशंस की, या पाकिस्तान जो है वो किस तरह एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो वाज़ेह रहे कि 70% ऑफ द प्राइमरी एनर्जी प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. And the sad thing is that burning or using fossil fuels also contributes a lot towards climate change. एक ऐसी कंट्री जहाँ आपके पास climate change is already happening और balance बहुत delicate हो. Any offset or any increase in carbon dioxide emissions are going to destroy that balance. और अगर हम बात करें कि 2019 में और 2020 में आपके पास जो पेट्रोलियम और कोल इम्पोर्ट्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू हिट एटलीस्ट $17 बिलियन. दैट इज़ अ ह्यूज ड्रेन ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी. ठीक है, पाकिस्तान का जो है वो जीडीपी आप समझे कि $17 बिलियन जो है वो अगर चले जाते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करने में, तो पाकिस्तान के जीडीपी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है. सो अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है पाकिस्तान के अंदर वो कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है, वो दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 2.7% फ्रॉम 2018 और आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन हैज़ फार इंक्रीज्ड योर डोमेस्टिक प्रोडक्शन. आपका जो इंडिजिनस गैस प्रोडक्शन है, ठीक है, ये 38 बिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर्स पे जो है वो 2018 में स्टेगनेंट हो चुकी थी. तो एज ऑफ राइट नाउ 2019 में और 2020 में भी आपके पास जो है वो 38 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा जो है वो आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं गैस. एंड दिस 38 बिलियन क्यूबिक centimeters of gas accounts for nearly 80% of total domestic consumption. मतलब इसका 80% जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में चला जाता है, चूल्हे वगैरह इंडस्ट्रियल यूज में. ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो सकती है. ऑलराइट, सो अब अगर हम बात करते हैं कि गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी जो है वो पाकिस्तान जो है वो उसकी कुछ बातें अगर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो नेप्रा जो कि आपके पास आपकी पावर सोर्सिंग अथॉरिटी है दैट हैज़ बीन इन प्लेस सिंस 1997 और the evolution of energy institutions in Pakistan has always been shaped by water and electricity. ठीक है, आपके पास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो आप समझे कि एक तरह से जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के अंदर आते हैं. ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स जो हैं दे ओवरसी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इन स्वीट. अब मसला ये है कि इस तरह के सेंट्रलाइज सिस्टम्स के साथ ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप का इंक्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. नॉट ओनली दैट, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप जब डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड करते हैं या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड करते हैं तो एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सिंगल बायर सिस्टम. और सिंगल बायर सिस्टम कब एग्जिस्ट करता है, जब आपके पास जो गवर्नमेंट है that has the whole and sole capacity of putting out power tenders and giving them to who they want. और obviously in a system that is extremely corrupt आपके पास क्या आता है, आपके पास जो है वो सब स्टैंडर्ड थर्ड पार्टीज जो हैं वो ये सिंगल बायर सिस्टम यूटिलाइज करती हैं. बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल कनेक्शंस दे आर एबल टू स्कोर टेंडर्स एंड एक्सेट्रा. इस चीज़ को पाकिस्तान को कम्बैट करना पड़ेगा बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मोर डिसेंट्रलाइज सिस्टम जहां आपके पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो ज़्यादा होगी और इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स नीड्स टू बी डन.
यहाँ आपके पास जो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसके अंदर एक और पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी. So now let us go over a few projects that Pakistan had in the pipeline, ठीक है, for providing electricity, for providing gas, and they, और as of right now वो एक तरह से geopolitical कशीदगी की नज़र हो गया. Number one, we have TAP, then we have TAPI, then we have 2TAP. TAP क्या है? The Turkmenistan Afghanistan Pakistan gas pipeline. Then we have the TAPI, which is the Turkmenistan Afghanistan Pakistan Indian pipeline. ठीक है. Number 3 आपके पास आता है 2TAP, which is Turkmenistan Uzbekistan Tajikistan Afghanistan and Pakistan. अब ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, दे स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 2013 एंड 2015 और अभी तक एज ऑफ राइट नाउ इन पे काम जारी है. Why is that so? The worsening conditions within these regions has made sites for all these power projects or all these transmission projects has made it very difficult for them to be completed in place. जैसे अगर आप टापी के एग्जांपल लेते हैं तो टापी में आपके पास जो है द प्रोविंस हेरात इन अफगानिस्तान, ठीक है, वहाँ आपके पास टापी को सैबोटाज करने की बहुत कोशिशें की गई हैं. नॉट ओनली दैट, साइट्स फॉर बिल्डिंग द टापी गैस पाइपलाइन have also been sabotaged in Afghanistan, in Quetta and in Balochistan as well. ठीक है, तो energy security is also a major problem in Pakistan that also needs to be combated. अगर हम नंबर 3 पे आते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज एंड हाउ कैन पाकिस्तान ओवरऑल इट्स इंटायर पावर सेक्टर टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स मोर क्लीनर एनर्जी. ठीक है, दैट इज अ ड्रीम दैट इज वेरी फार ऑफ. पेरिस अकॉर्ड्स में जब पाकिस्तान ने जो है वो साइन किया था मेमोरेंडम दैट दे वुड रिड्यूस देयर कार्बन इमिशंस बाय 20% in 2030 or more than that 2050. ठीक है, तो that was done on a condition that $40 billion would be floated to Pakistan in order for them to reduce their carbon footprint. Pakistan is a poor country. और अगर हम बात करते हैं कि एनर्जी सेक्टर को ओवरहॉल करने की, ठीक है, तो पैराडॉक्सिकली जब आप इंस्टॉल करते हैं मोर क्लाइमेट फ्रेंडली इंडेवियर्स या क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप लो फंड्स के साथ जो है वो इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी जो है वो इंस्टॉल कर सकें. अब हम बात करते हैं नंबर 4, विच इज़ इंक्रीजिंग अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस. एक तरह से शर्मिंदगी की बात होगी हमारे लिए कि in an example, हमारे पास अभी भी 58 million people are out of electricity due to poor transmission, poor grid systems and a lack of energy generating materials. बांग्लादेश ने अपना एक्सेस लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बूस्ट किया from 55% in 2010 to nearly 88% in 2017, and recent estimates of 2019 put that figure at 95%. बांग्लादेश ने अपना पावर एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज की है, and why can't we do that? Bangladesh was at a very lower economic progressive level than Pakistan only a few years back, but their policies and their forward thinkingness has put forward this huge energy boom inside Bangladesh that has consequently affected each and every sector. Their healthcare is better, their education is better, their internet connections all over the country are better, their industrial output is better. ठीक है, सो अगर आपकी एनर्जी वायबल नहीं होगी तो पाकिस्तान के लिए भी जो है वो अपने ये सेक्टर्स को बेहतर करना मुश्किल होगा. सो ये आपके पास सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान फेस कर रहा है एज ऑफ राइट नाउ. Now, what strategies can Pakistan undertake to reduce its carbon emissions? Number 1, to create a sound policy. Number 2, how to make sure that accessibility is granted to every person in this country. And number 5, what long-term measures can be taken towards a more cleaner, resilient energy mix. ठीक है, ताकि पाकिस्तान एक तो imports पे depend करना छोड़ दे, ठीक है, saving itself about 17 billion, ठीक है, 17 billion US dollars, थोड़ा सा indigenous
गैस की तरफ जाए और जो है वो इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग गैस दे कैन एक्चुअली जनरेट bilateral relationships with other countries and make sure that any and in cooperation with other countries, ठीक है, जो कि इन pipelines के अंदर या इन energy systems के अंदर invested हैं, make sure that each and every one of their problems या each and every one of these power lines या these supply lines do not have any hurdles from the Pakistani side. So now let's discuss that in a point by point manner. Number one is creating a sound policy, legal and regulatory environment. पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि शॉर्ट टर्म एनर्जी जो है लॉसेस को कवर किया जाता रहा है. वो कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है. तो अगर आप जो है वो वक्त के बाद जो है वो टांके लगा रहे हैं तो वो 9 टांके लगेंगे, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो शॉर्ट टर्म फिक्सेस की तरफ जा रहा है, तो दीज शॉर्ट टर्म फिक्सेस आर आल्सो हाई कॉस्ट इन द फ्यूचर एज वेल, क्योंकि शॉर्ट टर्म फिक्सेस कुछ अरसे तक ही रहते हैं. आप पैबंदकारी कुछ अरसे तक कर सकते हैं, उसके बाद यू हैव टू ओवरहॉल द इंटायर सिस्टम. And the system as of right now, the Pakistan's energy generating system is extremely backwards. Not only that, आपके पास एक optimal strategy in place भी होनी चाहिए that has legal measures to curtail करप्शन. नंबर 1. नंबर 2, इदारे जो हैं वो कुछ हद तक खुद मुख्तार हों ताकि वो विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर कैन यूज देयर मनी और देयर फंड्स टू क्रिएट ग्रिड्स और टू इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी ऑल ओवर पाकिस्तान. एंड नंबर 3, आपके पास एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दैट बोथ बैलेंसेस एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस के लेवल पे आपकी एनर्जी सिक्योरिटी को जो है वो कवर करे, नंबर 2 आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को कवर करे, और नंबर 3 आपकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी कवर करे. बिकॉज एज आई सेड कि इफ पाकिस्तान इज हिट बाय क्लाइमेट चेंज इट इज गोइंग टू बी हिट रियली हार्ड. पावर सेक्टर रेवेन्यूज को इंक्रीज करने का तरीकेकार क्या है, दैट दिस इज पॉइंट सेकेंड, कि आप अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करें. और इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो इदारे हैं, ठीक है, वो दे नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट, ऑलराइट, और उनके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी बैठी हुई हो दैट इज टू चेक आउट व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, कितने रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और कितना जो उनको फंडिंग दी गई है उसमें से कितना शॉर्टफॉल आ रहा है. यही तरीकेकार है कि आप अकाउंटेबिलिटी अगर जनरेट करते हैं, दिस इज ईजियर सेड देन डन, ठीक है. अकाउंटेबिलिटी जनरेट करना इज अ प्रोसेस दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ सेल्फलेस पीपल दैट आर ओनली गोइंग टू वर्क फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान. एज ऑफ राइट नाउ, ड्यू टू दिस वास्ट सर्कुलर डेप्थ इन द एनर्जी सेक्टर, यही वजूहत है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट या थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, बिकॉज दे नो दैट दिस सिस्टम इज एक्सट्रीमली करप्ट, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज एनर्जी प्रॉब्लम, पाकिस्तान जो है वो थर्ड पार्टीज को ऐसा इंगेज नहीं कर पा रहा है, विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ चाइना एंड अदर कंट्रीज एज वेल, ऑलराइट. अब पावर से और एक और बात जो मैंने पहले की थी कि जो सिंगल बायर सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर ट्रांसमिशन जो है वो कंट्रोल की जाती है बाय द गवर्नमेंट, इज हाईली पोलिटिसाइज्ड, दैट नीड्स टू गो अवे. एंड जो थर्ड पार्टी कल्चर है, जहां आप जो है वो आउटसोर्स करते हैं अपनी चीज़ें टूवर्ड्स प्राइवेट कंट्रैक्टर्स दैट डू नॉट हैव एनी यू कैन से बाउंड्रीज, ठीक है, या उनके पास कोई मार्जिन नहीं होता है, ठीक है, या दे आर मल्टीनेशनल कंपनीज, ये थर्ड पार्टी कल्चर को जो है वो ओपन करना पड़ेगा ताकि आपके पास मजीद जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हों, ठीक है, और प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो दे आर एबल टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर if they are assured कि आपके पास revenue generation होगी. So this is step by step. First of all, you need to have a proper legal strategy and an optimal strategy that covers both energy security, that covers environmental sustainability and economic growth. उसके बाद you have to establish an accountability system that makes sure कि आपके पास जो funds allocated हैं उसकी वजह से shortfall जो है वो नहीं आए, ठीक है. This is going to take a lot of time, and once the energy sector inside Pakistan is free from such security concerns,
and also from corruption concerns, so you will be attracting third party buyers. And number 4, single buyer system which is highly politicized, that needs to go. Okay. So अब हमने बात कर ली है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी एनर्जी सेक्टर को कैसे बेहतर कर सकता है. अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हाउ कैन इट रीओरिएंट इट्स एफर्ट्स टुवर्ड्स अ मोर रिजिलियंट एनर्जी मिक्स दैट डज नॉट कॉस्ट मच. आई हैव आल्सो पॉइंटेड आउट बिफोर हैंड कि पाकिस्तान के इंपोर्ट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जनरेशन पर्पजेस के लिए दे हैव एक्सीडेड $17 billion. वी हैव टू फोकस ऑन गैस, ठीक है, ऑन मोर गैस प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर पावर. यहाँ तो माशाल्लाह से इतनी धूप है, सोलर पावर जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग इट फॉर यूपीएसएस, ठीक है. और वाजिया रहे कि 2018 में आपके पास जो टोटल पावर जनरेशन थी उसका 43% जो है वो आपका गैस प्रोवाइड कर रहा था. लेकिन एज ऑफ राइट नाउ आपके पास जो गैस की प्रोडक्शन है वो स्टैग्नेट कर चुकी है, और इसमें से अगर जो है वो 80% जो है वो जाता है टूवर्ड्स डोमेस्टिक गैस यूज, सो वी हैव अ वेरी लेस लेवल ऑफ गैस लेफ्ट टू मेंटेन आवर एनर्जी डिमांड्स. और अगर वाजिया रहे कि गैस जो है उसकी बर्निंग की वजह से आपके पास ज़्यादा जो है वो कार्बन एमिशंस नहीं होती है एज कम्पेयर टू ऑयल, क्रूड ऑयल एंड कोल, ठीक है. एक वास्ट स्प्रॉलिंग नेटवर्क के बजाय मिनी ग्रिड्स इंस्टॉल किए जाएं, मिनी पावर स्टेशंस, मिनी पावर ग्रिड्स टू facilitate every single you can say town or every village that is deprived of electricity, ठीक है. Not only that, ठीक है, we also have a very viable option in the name of nuclear power. You have already heard of Canop 1, Canop 2, Chashma 1, Chashma 2, ठीक है, जो आपके पास power reactors already जो है वो they are in working in Pakistan, ठीक है, and they contribute a very small amount towards Pakistan's overall energy generation. लेकिन अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो किस तरह बायलैटरली जो है वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ चाइना. अब अगर हम जो इस बात को सामने रखते हैं कि आपके पास ऑलरेडी पावर रिएक्टर्स 4 हैं, ठीक है, तो ये एग्जांपल भी बहुत वैलिड होगी कि चाइना जो है वो 2 पावर प्लांट्स बाय द नेम ऑफ हुआलोंग 3rd जनरेशन रिएक्टर्स, दे आर बीइंग बिल्ट नियर कराची अलॉन्ग विद अदर 4 स्मॉल nuclear power projects, ठीक है. They are expected to be completed by 2021, and these 2 big Hualong generation 3 power projects, they are going to be providing around 1000 megawatts of electricity each, ठीक है. तो that means कि 2000 megawatt of electricity जो है वो आपके इस ग्लोबल ग्रिड सिस्टम के अंदर ऐड किए जाएंगे. लेकिन this might be feasible एनर्जी क्लाइमेट चेंज वाइज, बट इट इज़ नॉट फीजिबल कॉस्ट वाइज, क्योंकि अगर बात करते हैं कि जो है वो पर किलोवाट जनरेटेड जो है वो कितने पैसे लगते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट $1000. इट्स नॉट फीजिबल, इट्स एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव. एंड इसकी एक्सपेंस जो है वो हम किस तरह कम कर सकते हैं जब आपके पास जो है वो इंडिजिनसली जनरेटेड पावर प्लांट्स होंगे, न्यूक्लियर इंडिजिनसली जनरेटेड पावर प्लांट्स. Since that is not going to happen soon enough, ठीक है, तो we need China's help in that as well. Last but not the least, we have our wind energy potential. As of right now, ठीक है, अगर हम जो है ये स्टार्ट्स जो है वो 2017 से लेके 2019 की स्टार्ट्स हैं, ठीक है. 1500 megawatts of wind, solar and bagasse energy have been added to the entire Pakistan power sector, ठीक है. बगास क्या होती है, दैट इज बायोगैस, ठीक है. सो इफ वी टॉक अबाउट विंड एनर्जी, ठीक है, इन द सिंध कॉरिडोर जहाँ आपके पास बहुत तेज हवाएं चलती हैं, इन द इस्लामाबाद कॉरिडोर एज वेल, वी हैव विंड्स दैट कैन एक्सीड टू अबाउट 6.9 फ्रॉम 6.9 to 8.6 meters per second. Okay, this is enough to generate a lot of electricity if we only have the wherewithal कि हम जो है वो ढंग से एयर टर्बाइंस लगा सकें. लेकिन then again the energy system inside Pakistan is deeply politicized and deeply corrupt. बिजली सिर्फ वहाँ जाएगी जहाँ आपका पॉलिटिशियन चाहेगा. So
अगर मज़ीद हम बात करते हैं कि इन कंक्लूजन Pakistan has a lot of alternatives that can be exposed, that can be taken along, ठीक है. जैसे मैंने आपके पास टैप की बात की है, टैपी की बात की है, टैनअप की बात की है, ठीक है. हमारे पास बायलेटरल तरीक़ेकार है, मल्टीलेटरल तरीक़ेकार हैं टू गेट एनर्जी. वी ऑल्सो हैव रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वी ऑल्सो हैव अ वेरी ह्यूज hydroelectric system, ठीक है, that is currently suffering again from a lot of mismanagement. Then we have solar energy, all right, but there are a lot of problems that Pakistan needs to overcome in creating a more viable energy structure, okay, that in turn can help Pakistan economically and socially as well. So this is all for today. I hope that this has been enlightening for you. I will inshallah upload the PDF for this, ठीक है, in a proper heading system as well. You can check the link given in the drop down box. So this is in conclusion that the South Asian Energy Corridor, ठीक है, has Pakistan as a viable important partner. लेकिन because of a very centralized governance system, bureaucracy and politicization, the energy sector in Pakistan has suffered for decades now, and as a result its people are suffering now. It is high time that critical reforms are to be taken into consideration और थोड़ा सा करवा घूंट भर के अपने एनर्जी सेक्टर को जो है वो वायबल करने की बहुत ज़रूरत है. So this is our complete lecture for today. Stay safe. Allah Hafiz.